Good evening, ma'am. Yes, good evening. Good evening. Very good evening. Amin, we'll wait for another 2 to 3 minutes and then we'll start. Okay. Okay, ma'am. If you'll wait for more 5 minutes, it will be good because I just want to finish with my prayers. Okay. 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 No more. No. No problem. Ma'am, I will rejoin after 5 minutes. Okay. No problem. No problem. Okay.
Good evening, ma'am. Good evening. So, Seno, we're going to start our last lecture now. So, right now I'm going to share my PPT with you. Is my voice clear Yes, ma'am. to you? Voice is clear. Yes, yes. Okay. More people will going to come to join us within 4 to 5 minutes, but still we'll start. Already it's 7:10. So we'll start and let the other come. So in last lecture we have covered the valuation methodology. Okay, environmental valuation, the approaches towards the environmental valuation, how we can value the environmental thing which are conducting in the industry and all of the stuff. And we have seen the approaches, methodology of the approaches, how we can approach towards this costing, valuation, and all of the stuff. Okay, there are several techniques of the evaluating the environmental what we can say environmental thing. Okay, whatever is going to done by any individual, industry, NGOs, or anybody who is participating to enhance the environment, to minimize the environmental impact, that is to be value. And there are several techniques for that. That is, first is very famous, that is hedonic pricing. Analyze the property price like housing to estimate the value of the environmental amenities like clean air, quiet means अगर वो residential है तो कितना silent zone में चाहिएगा, and best used for air quality, noise level, and scenic views. And generally hedonic pricing is generally applicable to the residential, commercial, and hospital, schools, just like that type of building. Okay, this is the thing. Next valuation technique is a travel cost method, which includes which calculate the cost of people incurred to visit a site, travel expenses, time to infer its recreation value. Generally, national park, beaches, lakes, and whatever the we can say जो visitors जहाँ पे आते हैं, बस उसी के लिए travel cost method होता है. जो हम जीएसटी वगैरह पे कर रहे हैं ना, आप ये देखिए, जो जो भी हम कहीं पर भी एक बस की टिकट भी लेते हैं तो उसमें हमें जीएसटी देना जरूरी होता है. कुछ भी अगर आप लोग प्रॉपर्टी लो, हेडोनिक प्राइसेस में तो प्रॉपर्टी लोगे तो प्रॉपर्टी में भी हमें जीएसटी देना पड़ता है ना. ऐसा नहीं है कि पूरा की पूरा पैसा जो भी जीएसटी का है दैट विल बी यूज फॉर ओनली सिंगल पर्पस. नो, some amount of GST, depending on to the country and their rules, some amount of GST, some amount of the taxes will going to be used for the or to minimize the environmental impact of the country. Okay, that's how it is connected. Travel cost method कि travel में कितना expense कर सकते हैं हम. अब जैसे कोई डेवलपिंग कंट्रीज है और ट्रैवल उनका बहुत ज्यादा फ्यूल बेस है, बहुत ज्यादा इमिशन होगा, तो वहां पे वो क्या करेंगे, उस पर ज्यादा जीएसटी होगा. जैसे कि हमारे इंडिया में पेट्रोल की कॉस्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है. तो पोल्यूशन जो रिसोर्सेज है जहां से हो सकता है तो उसके उसके ऊपर जीएसटी ज्यादा लगता है. Right, this is the thing. Now next is a contingent valuation, a survey based method that directly asks for the WTP, water treatment plant, or vigilance to accept WTA compensation. ये सर्वे बेस होता है. कंपनियां, गवर्नमेंट और थर्ड पार्टी ऑडिटर समथिंग, वो जाते हैं और जो नॉन यूज, हमने जैसे यूज एंड नॉन यूज वाली चीज देखी थी, नॉन यूज, एग्जिस्टेंट वैल्यू, बायोडाइवर्सिटी, इन पे टैक्सेस लगाते हैं. राइट, देन चॉइस एक्सपेरिमेंट आस्क द रिस्पोंडेंट्स टू चूज बिटवीन सिनेरियो विद डिफरेंट एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट्स एंड द कॉस्ट. सामने वाले कोई पूछते हैं कि आप बताओ आपका सिनेरियो कैसे है, आप कहाँ पे किस तरीके से
मतलब टैक्स दे सकते हैं, वैल्यूइंग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। फिर उसमें वो कहेगा कि हम वाटर क्वालिटी एनहांस करेंगे, फिश डाइवर्सिटी को एनहांस करेंगे, समथिंग लाइक दैट। देन प्रोडक्शन फंक्शन असेस हाउ द एनवायरमेंटल डैमेज रिड्यूसेस द आउटपुट एंड मार्क गुड्स। ओके, जस्ट लाइक वाटर पोल्यूशन डैमेजिंग फिशरीज, है ना। जितना भी वाटर पोल्यूशन अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली फिशरी जो इंडस्ट्री है, और वो मेजर इंडस्ट्री, इसको इतना स्कोप है कि मैं बता नहीं सकती। अगर आप महाराष्ट्र में तो आप देखते हो इस सब चीजों को कि फिशरीज वास्ट इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा जो कंट्री है या जो भी है ना, वो पूरे के पूरे हर जगह पे फिशेस अवेलेबल है, नहीं। बहुत कम स्पीसीज हर जगह पे अवेलेबल है। दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट एंड जनरली दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओशन सी। ओके, रिवर में तो आजकल बची ही नहीं है बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो प्रोडक्शन कैसा है, कहाँ पे एनवायरमेंट को डैमेज कर रहा है, तो इस हिसाब से वहां पे वैल्यूएशन टेक्निक लगती है। लास्ट सेकंड है रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग एंड इकोसिस्टम सर्विसेज जस्ट लाइक वेटलैंड रिस्टोरेशन व्हेन डैमेज इज इजीली रिपेयर और रिप्लेस, है ना। तो उसकी हम कॉस्टिंग करते हैं कि जैसे अगर कोई लैंड है और वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो उसे हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे ड्राइव होते हैं बॉम्बे में, है ना, कई सारे जो बीचेस होते हैं वो बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, और फिर वहां पे रिपेयरमेंट जाती है, गवर्नमेंट कुछ कॉस्ट देती है, पब्लिक आती है वहां पे, एनजीओज आते हैं, कुछ बाकी के लोग आते हैं, और वो पूरा बीच साफ होता है। आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे, है ना। तो वहां पे डैमेज के इजीली रिपेयर होता है, तो वहां पे ये वाली मेथड यूज होती है। देन नेक्स्ट इज अ प्रिवेंटिव एक्सपेंडिचर, यूज अमाउंट ऑफ पीपल स्पेंड to prevent the damage, buying water filters as proxy for the value of the damage. Okay, प्रिवेंटिव मतलब होने से पहले ही हम कुछ उसके लिए कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट वी कैन से प्रिवेंटिव मेजर्स। कोई और ज्वाइन हुआ है? नो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, सो सॉरी 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 जैसे कि वाटर फिल्टर ले लिए घर में तो साफ पानी मिलेगा, वो अल्टीमेटली कहाँ इम्पैक्ट करेगा? हेल्थ इम्पैक्ट रिड्यूस करेगा, वाटर क्वालिटी एनहांस करेगा एंड लॉट्स ऑफ द स्टफ। प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्यूर। नोट व्हाई आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस टेक्निक इज लास्ट वन, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। आप प्रिवेंशन को सबसे प्रायोरिटीज बेस पे रखो। मे बी द कॉस्ट वाइज इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉस्ट लगती है हेडोनिक प्राइसिंग में, फिर ट्रैवल में, फिर देन इट विल गोइंग टू गेट रिड्यूस एंड लास्टली प्रिवेंटिव में सबसे कम कॉस्ट लगती है ना। तो इस तरीके से वैल्यूएशन के हिसाब से भी इसे कैटेगराइज किया गया होगा। ओके, नाउ द मेन पॉइंट इज वैल्यूएटिंग एनवायरमेंटल एमिनिटीज, है ना। जो भी एनवायरमेंट के एमिनिटीज है उसको वैल्यू करना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्रूशियल टॉपिक है, but still somehow human being is managed to value the amenities as well as. Okay, valuing environmental amenities such as scenic views, biodiversity, clean water involve identify the specific benefit provide to the individual. Okay, first of all, to identify the amenities it's quite difficult. अब जैसे देखो, आप गोवा के बीचेस जो है वो काफी ज्यादा प्योर है, मतलब वहां पे आप आपको सी जो है वो काफी ज्यादा प्यूरिफाइड मिलेगा। वही दमन में चले जाओ आप तो काफी ज्यादा गंदा मिलेगा आपको, सूरत में चले जाओ तो गंदा मिलेगा। तो जो ये एमिनिटी हुई तो ये गोवा में ज्यादा हुई, है ना। विजुअली वो वहां पे बहुत अच्छा है, और वहां से आपको वैल्यू मिल सकती है, तो गोवा की वैल्यू ज्यादा है। फॉर टूरिज्म पर्पस ले लो या जो भी, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ टूरिज्म, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू सूरत एंड अदर सी शोर एरियाज जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है ना। दमन काफी सस्ता है घूमने के लिए एज कम्पेयर टू गोवा। गोवा इज क्वाइट एक्सपेंसिव। Why? Because the environment amenity over there is very nice. That's why we are giving its more value than the other thing. आया समझ में इस एग्जांपल से? Okay, and to identify it, that gives a special benefit
ओके, टू द इंडिविजुअल, टू द इंडस्ट्री एंड टू अदर सेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वैल्यू करना है एनवायरमेंटल एमिनिटीज को। दैट इज नथिंग बट वैल्यूइंग द एनवायरमेंटल एमिनिटीज। फर्स्ट आइडेंटिफाई इट, दैट इज द मोस्ट क्रुशियल पॉइंट कि आइडेंटिफाई कैसे करें, है ना। तो aesthetic value, appreciating natural beauty, often value with a heterogeneous pricing. Okay, just give me a 1 minute. 1 minute, I'll back. Okay, 1 minute or only 1 minute. Yes. So जैसे कि मैं बता रही थी, है ना, aesthetic value, appreciating natural beauty, often value by the heterogeneous pricing. तो जहाँ पे बहुत अच्छी चीजें हैं, राइट, उससे ज्यादा वैल्यू देना, क्या वहां पे ऑटोमेटिकली हेडोनिक प्राइसिंग टेक्निक लग जाती है और वहां की वैल्यूएशन ज्यादा बन जाती है एज कम्पेयर टू अदर। बिकॉज इफ विल सी द टूरिज्म इंडस्ट्री इन गोवा, देन डेफिनेटली विल सी most of the people are visiting and enjoying and staying over there, as well as foreigners are over there. So ultimately the valuation thing over there will going to be get high, right, because of rush, because of busyness and all of the stuff, as compared to the other what we can say other islands. Okay, so वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी जो एस्थेटिक वैल्यू है वो ऑब्वियसली हाई वैल्यू देती है एनवायरमेंटल एमिनिटीज को। नाउ नेक्स्ट वन इज अ रिक्रिएशन वैल्यू। ओके, यूजिंग नेचुरल साइट, ऑफन वैल्यू यूजिंग अ ट्रैवल कॉस्ट मेथड, है ना। कोई ऐसी नेचुरल साइट उसे एक्सपोज करो और उसके हिसाब से वहां पे ट्रैवल कॉस्ट मेथड से वहां पे ज्यादा टूरिज्म बनाओ और फिर वहां पे क्या करो, उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज करो, राइट। रिक्रिएशन ऑफ द वैल्यू, जैसे जैसे कई सारे, अभी देखो आप केदारनाथ देख लो, आज से 10 साल पहले ना बहुत कम लोग केदारनाथ को विजिट करते थे, बट बिकॉज ऑफ रिक्रिएटिंग वैल्यू ऑफ द केदारनाथ, influencing the and influencing the people by the influencer, YouTube influencer, and the Uttarakhand CM also approaches to come towards the Kedarnath and come to the Kedarnath as well. So itself that Kedarnath value will going to be recreated, right? एंड ट्रैवल कॉस्ट मेथड इज अप्लाइकेबल। केदारनाथ की टिकट बहुत महंगी होती है जब से उसके पट खुल जाते हैं, है ना। अदरवाइज केदारनाथ की टिकट कम होती है। दैट्स द थिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है? मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. Okay. Thank you very much. So this is the thing. Okay, now next one is a cultural and spiritual value. Spiritual value works everywhere. जहां पे भी आप जाओ, कल्चरल नो डाउट वो भी वैल्यू करता है, बट स्पिरिचुअल gives the too much valuation to the environmental amenities. That's why most of the people moving towards it. Okay, often assessed through the contingent valuation survey to determine community attachment and WT for the protection. कल्चरल भी आप देखो, जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है कल्चर का और स्पिरिचुअल वैल्यू का, वहां पे भी एनवायरमेंटल एमिनिटीज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस, काफी ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है। अगर कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, अगर कोई कल्चरल प्लेस है, तो वहां पे देखो आप एनवायरमेंटल एमिनिटीज आपको भरपूर मिलेगी, साफ पानी, साफ हवा। ऑब्वियसली वहां पे वैल्यूएशन ज्यादा हो रही है ना, क्योंकि वहां पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। Now next one is the ecological function. Value through the replacement cost or a protection function method. Just value for the wetland, for the flood protection. कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि जिस वजह से उसको क्या कहते हैं, फेमस हो जाती है। कैसे कहेंगे अब इसे, जैसे कि कहा गया है, फ्लड जब आता है, राइट, उसे रोकना बहुत मुश्किल है। बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ वेटलैंड, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड, वेटलैंड का कंसेप्ट अगर आप आम भाषा में कहो तो एक तरह से क्या है,
दलदल जैसा है वो, बट उसमें फंस नहीं सकते हम, उसकी डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द दैट दलदल जो भी हम कहते हैं उसको, है ना, क्योंकि दलदल में आप अंदर घुसते ही जाओगे, बट वेटलैंड इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स हैव अ हाई डेंसिटी बट इट कंटिन्यूअसली सैचुरेटेड विथ वाटर और वेस्ट वाटर समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका फ्लड को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो बाय कंस्ट्रक्टिंग द वेटलैंड्स, राइट। You are replacing something, you are valuing that thing with the help of, क्या कहेंगे, वेटलैंड से आपने उसकी वैल्यूएशन बढ़ा दी। अगर फ्लड ही फ्लड उस लैंड पे आता रहा, ना कोई रेसिडेंशियल मिलेगा वहां पे, ना कोई इंडस्ट्री आएगी, नथिंग, वहां पे एनवायरमेंट की कोई केयर करने वाला नहीं है। बट अगर आप वहां पे कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स बना रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे रेसिडेंसी आएगी, वहां पे एनवायरमेंटल, अगर रेसिडेंसी, अगर एक भी ह्यूमन बीइंग जाता है तो एनवायरमेंटल एमिनिटीज वहां पे इन्वॉल्व होती है। So this is how ecological functions are very important for the evaluating the environmental amenities. Okay. Now coming towards the valuation in concept. First is a willingness to pay and willingness to accept. Okay, these two terminology is what we can say next to impossible for the most of the people. Okay. अब यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये थोड़ा सा सोशो एनवायरमेंटल कंसेप्ट है, सोशल प्लस एनवायरमेंट। हम एनवायरमेंट को लेके सोशलाइज हो रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है इन अदर टर्म्स एज वेल एज। सो फर्स्ट इज WTP, विलिंगनेस टू पे। आप कितना दे सकते हो, है ना, एनवायरमेंट की बेनिफिट्स एमिनिटीज पाने के लिए आप कितना दे सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट an individual will pay to secure the environmental benefits, वो कितना अपनी जेब से खर्च कर सकता है, राइट। साफ पानी के लिए तो ऑब्वियसली हर कोई, मैक्सिमम जिनके पास अच्छा खासा बजट है वो साफ पानी के लिए खर्च कर सकते हैं। जब हम ट्रेन में कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, वी डू नॉट हैव द वाटर एंड वी नीड टू ड्रिंक द वाटर, देन ऑटोमेटिकली वी आर बाइंग द वाटर बॉटल, राइट, है ना, ऐसे ही है ना। सेम थिंग ऐसा ही है। और फिर जब वो वाटर बॉटल हम यूज कर लेते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, what will gonna do with that water bottle, we are thinking about it, no. So first of all, how to dispose it, right, that's the thing। फिर वहां पे willingness to accept आ जाता है कि हाँ चलो कचरे में डाल दो, है ना। तो विलिंगनेस टू पे, अगर यही चीज अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यहाँ पे क्या लोकेशन जो सोर्स है वो आपका मूविंग सोर्स है एयर का, एक पॉइंट पे स्टेबल नहीं है। आप वहां पे विलिंगली पे कर सकते कि जहां कहीं पर भी विद इन ट्रैवल, जहां कहीं भी मूव मैं कर रहा हूँ, वहां पे अगर एयर की क्वालिटी थोड़ी देर के लिए भी पुअर है तो मैं एयर प्यूरिफायर लगाऊं। No, you are trying to avoid it, right? You are trying to avoid it. So willingness to, maximum लोग तो ऐसा ही करते हैं। आजकल कई सारे जो कंट्रीज है वहां पे ये सारी प्रॉब्लम तो होती नहीं, बट वहां के ट्रेन भी एयर प्यूरिफाइड कंट्रोल सिस्टम के साथ में आते हैं, है ना। दे आर पेइंग फॉर द सीट इन दैट कैबिनेट जहां पे प्यूरिफाइड एयर मिले, राइट। अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्यूरिफाइड एयर दे, इसीलिए प्लेन की टिकट इतनी महंगी भी होती है। एक तो इतने ऊपर जाके आपको प्यूरिफाइड एयर दे रहे हैं, और वो भी उसी डेंसिटी की जहां पे हम नीचे रह रहे हैं, उसी डेंसिटी की, ताकि आपको क्या तकलीफ ना हो सांस लेने में। दिस इज नथिंग बट एनवायरमेंट, वैल्यूएटिंग द एनवायरमेंटल एमिनिटीज। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता है। Now the next is a willingness to the accept, that is minimum compensation of an individual is willing to accept to forego the environmental benefits. Okay, that's the thing. Next is a shadow price, the implicit unobserved market value of a non-market goods. कई सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे unnecessary GST है, हम सोचते भी हैं यहाँ पे GST कम भी रह सकता था, सॉरी, राइट, बट वहां पे भी GST है, उसे क्या कहेंगे, शैडो प्राइसिंग हुई वो। उसका पैसा इनडायरेक्टली हम कहाँ यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंट एमिनिटीज को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए ऑफ द कंट्री, राइट। सो ये क्या हुआ, अनऑब्जर्व इम्प्लिसिट थिंग्स हुई, राइट, जहाँ पे शैडो प्राइसेस लगाए गए हैं, है ना।
अब जैसे ट्रैवल सेक्टर की बात ही करें तो जब हॉलीडे पीरियड होता है तो ट्रैवल जो टिकट, कोई भी टिकट ले लो, बाय एयर, रोडवे और एनीथिंग, फ्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट, या ट्रेन की तो हमेशा एक जैसी रहती है, बट बस की टिकट अगर आप देखो, प्राइवेट बस की, तो ये सब क्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये कि शैडो प्राइसिंग है ना। वो अपने बेनिफिट के लिए यूज करिए, नो डाउट, दे आर मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम दैट, no doubt, but ऐसी कई सारी चीजें हैं. This is one of the example of the shadow pricing. Okay. Now coming towards the next topic, that is environmental economic base assessment. Okay. So what is this? Environmental economic base assessment evaluate the economic cost, benefit, trade-off, and environmental policies, natural resources usage, and development project or development project. ये हमने already भी देखा है ना? कैसे असेस करना है, वही आएगा उसमें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सीबीए ही आएगा. सेम थिंग है. जो मेथड हमने जो अप्रोचेस मेथड देखे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए, वही सेम चीज असेसमेंट के लिए आएगी, सेम इकोनॉमिक. तो उसमें बस हम लोग यही इवेल्युएट कर रहे हैं कि कितने कॉस्ट बेनिफिट ट्रेड ऑफ और जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं उससे कितना हमें कॉस्ट मिल रहा है. इकोनॉमिक बेस असेसमेंट वही हुआ है ना, राइट. By monetizing environmental impact, it balance sustainable development with ecological preservation using tools like cost benefit analysis, valuation of the economic service, market based policy assessment, carbon taxation, and all of the stuff. Okay. तो ये ऑलरेडी हमने सेम टू सेम अप्रोचेस में देखा है, बट सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल इकोनॉमिक असेसमेंट, फर्स्ट वन इज सीबीए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कितना बेनिफिट होने वाला है, कंपेयर्स द मॉनिटरी बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट अगेंस्ट इट्स एनवायरमेंटल कॉस्ट, इवैल्यूएटिंग इफ नेट बेनिफिट इज पॉजिटिव फॉर द सोसाइटी. दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ओके, to be understand while we are assessing the economic of the environment. Okay, we are not approaching the economics, we are actually assessing the applied economics of the environment. That's why it will going to extract the benefit, whether it is positive or negative for the society. Okay, वो मॉनिटरिंग जो भी रहेंगे बेनिफिट्स प्रोजेक्ट्स के इन टर्म्स ऑफ द एनवायरमेंटल कॉस्ट, उसमें से कितना नेट बेनिफिट हुआ और पॉजिटिवनेस कितनी गई सोसाइटी की तरफ, इससे सीबीए मेथड से निकाला जाता है. नेक्स्ट इज ए टोटल इकोनॉमिक वैल्यू. Total economic value, a framework used to account for a total value of environmental resources, including direct, indirect use, optional value and existent value. ओके, एक तरह का फ्रेमवर्क है. जैसे कोई इंडस्ट्री है, वहां पे डायरेक्ट यूज एनवायरमेंट का क्या हो रहा है, सपोज वाटर हम वहां पे यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्ट यूज किस चीज का हुआ, एयर का हुआ. ऑप्शनल यूज, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एयर, तो नहीं ले सकते ऑप्शनल यूज में, इट इज कंपल्सरी. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नॉइज को हम ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इस तरीके से उसमें एक फ्रेमवर्क के हिसाब से उसका जो कॉस्ट निकल रहा है, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज उसमें जो जो वैल्यू हो रही है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है वो कहेंगे आप टोटल इकोनॉमिक वैल्यू. इन शॉर्ट, जब आपकी सीए के पास जाते हैं ना, तो वहां पे पूछते हैं एनवायरमेंट में इस बार कितना टोटल इकोनॉमिक वैल्यू हुआ है. जो ये पीडी, एमडी, ये जो लेवल के लोग होते हैं ना, इनके लिए बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, राइट. कि वो सीए को पूछते हैं, और सीए के लिए भी काफी कॉमन टर्मिनोलॉजी है. पूरा की पूरा एनवायरमेंटल एमिनिटीज में, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज में कितना टीवी आया है, टोटल इकोनॉमिक वैल्यू कितनी आई है, बिकॉज दे आर इकोनॉमिक पर्सन, नो डाउट. ओके, नाउ द वैल्यूएशन टेक्निक. अभी हमने सारे मेथड्स देखे हैं, राइट. Method to assign monetary value to the non-market goods like clean air, biodiversity. This include real preference method, market data and state preference method survey. ठीक है, या तो मार्केट डेटा से उसको निकालो या तो फिर सर्वे कर लो, बट जो नॉन मार्केट गुड्स है उसके लिए हम कितना खर्च कर रहे हैं, राइट. दैट इज nothing but a valuation technique. Then externalities analysis, identify hidden unintended cost of the economic activities such as pollution, which are not reflected in the market price, suggested way to internalize them, right. कोई प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, let's take an example,
कोई सपोज सपोज बिस्किट बना रहा है ना, वहां पे कहीं पे कोई बहुत मुश्किल है कि वहां पे प्रोडक्ट में आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन या फिर एनवायरमेंटल की चीज को लेके कोई प्राइसिंग होगी नहीं ना। वहां पे जो सेल कर रहे हैं, शुगर कितनी लगी, कार्बोहाइड्रेट्स कितने लगे, एनर्जी कितनी लगी, ऑल ऑफ द स्टफ, और वो लिस्टेड हो गया, उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग होगी, राइट। बट हिडन चीजें तो बहुत सारी है ना। बिस्किट बनाते समय आपने उसको किसी मशीनरी में डाला होगा, भट्टी में उसका आटा गूथा डो बनाया होगा, फिर अवन यूज किया होगा, हाई एनर्जी यूज की होगी इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और इन टर्म्स ऑफ द चारकोल एंड समथिंग लाइक दैट, देन यू बेक इट, राइट। सो वहां पे कई ज्यादा पोल्यूशन हुआ और आपको उसको ठीक करना है, वो एनवायरमेंट को हजार्डस इम्पैक्ट देंगे, राइट। तो ये क्या है, एक्सटर्नल एनालिसिस कि हम हमारे प्रोडक्ट को छोड़ के और कितना एनवायरमेंट को लेकर खर्च कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द एक्सटर्नल एनालिसिस. Now, market-based instrument assessing the policies like cap and trade system, tax on emission, and subsidies for a green technology to promote the emission efficiency, है ना। मार्केट बेस्ड जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आजकल, जो भी पॉलिसीज बना रहे, उससे कितना फायदा हो सकता है, उससे कितना हमें और बेनिफिट हो सकता है, कॉस्ट कितनी कम हो सकती है, दैट इज नथिंग बट दैट असेसमेंट इज नथिंग बट मार्केट बेस्ड. Then LC, a systematic ISO standardized tool to evaluate environmental burden on a product or a project from raw material extraction to the disposal. LCA तो मैंने ऑलरेडी बहुत बहुत डिटेल में पढ़ाया है, राइट। वहां से भी एनवायरमेंटल कॉस्ट निकलती है, रॉ मटेरियल से लेके तो डिस्पोजल तक एलसीए बना रहे, तो ऑब्वियसली वहां से लेकर आपको पूरी कॉस्ट आप निकाल सकते हैं कि एनवायरमेंट में कितनी कॉस्ट लग सकती है। एक सिस्टमैटिक हुआ. Some of the common applications like environmental impact assessment, natural resource management, policy evaluation. Environmental impact assessment में अगर आप देखो EI में, तो incorporating and economics analysis to evaluate the social, economic, health and ecological impact of proposed project. EI जैसे मैंने कहा भविष्यवाणी है, तो ये सब जो चीजें रहेगी वो भविष्य के लिए पहली एनालाइज की गई रहेगी, कितना सोशल इकोनॉमिक हम लोग बेनिफिट देंगे, कितनी हेल्थ एनहांस होगी, कितना इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो कितना हम लोग एनहांस कर सकेंगे, कितना अच्छा बना सकेंगे फॉर द प्रपोज प्रोजेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन इज नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, असेसिंग प्रोजेक्ट involving forestry, water use and biodiversity protection to ensure long-term viability. वहां पे सस्टेनेबिलिटी आ जाती है. पॉलिसी वैलिडिटी बहुत इसका क्या है, एक बहुत मेजर आउटकम है अगर आप देखो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक का, दैट इज अ पॉलिसी इवैल्यूएशन एनालाइजिंग द इफेक्टिव एंड इक्विटी ऑफ द एनवायरमेंटल रेगुलेशन. जो पॉलिसी अगर हम एनवायरमेंट को अच्छी तरीके से वैल्यू कर पाए ना, तो पॉलिसी बहुत अच्छे से बन सकती है. तो फिर कई स्टेट्स जो इंडिया में ना झगड़ते रहते हैं, उसको ज्यादा पैसा हमको कम पैसा, तो वहां पे वही कंफ्लिक्ट नहीं आएगा इफ यू आर assessing or if you are evaluating the environmental amenities, environmental economics well defined. Okay, तो वहां पे पॉलिसी इवैल्यूएट करना बहुत इजी जाता है. Okay, so next is a market based instrument for pollution control. इसे MBIS भी कहते हैं, फॉर पोल्यूशन कंट्रोल. मार्केट में बहुत ज्यादा है. MBIS पोल्यूशन कंट्रोल आर पॉलिसी tool that use economic intensive rather than direct regulation or motive firm and individuals to reduce the environmental damage by putting the prices on pollution. They make it cost effective for polluter to adopt a cleaner technology and reduction emission, providing flexibility compared to the traditional command and control method. ठीक है, कमांड करो और कंट्रोल करो, दैट्स द थिंग. मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी, इन शॉर्ट कितना जीएसटी कहाँ पे लगाना है, दैट्स द थिंग, है ना. गांव में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ. गांव में बिजली का यूनिट कितना होगा, 6, 7, 8 रुपए. भाई आप शहर में जाओ 9, 10, 11, 12 रुपए, है ना. दिल्ली हाई मेट्रो सिटीज में जाओगे तो 12, 13, 14, 15 रुपए तक भी जाता है कई जगह पे, कई सेक्टर्स में, राइट. सो दीज आर द थिंग्स कि हाँ कहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, वहां से टैक्स ज्यादा वसूल करो, है ना. दिस इज अ मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट टैक्स, है ना.
So first is the environmental taxes and charges, like I say, market-based instrument. Fees levies on a pollutant, carbon tax. Essential marketing polluter pay for the external cost of their actions. इसलिए कहते हैं मेट्रो सिटीज में रहना बहुत महंगा है। महंगा इसलिए क्योंकि वहां पे टैक्सेस ज्यादा है। वही गांव में रह लो तो टैक्स ही नहीं है, राइट? सो दिस इज द थिंग। ट्रेडेबल परमिट, कैप एंड ट्रेड, जिससे हम लोग कहते हैं authorities set a cap on a total emission and issue permit which firm can buy or sell. This ensure emission reduction are achieved at the lowest overall cost. ये बहुत मुश्किल है, बट क्या करें, ये एक मेथड है कि एक तरह से कैप लगाए और सबसे कम इमिशन कर सके, है ना, इंश्योर, और सबसे कम पैसा हम भर सके। कंपनी को ऐसा दिखाना है कि हमने बहुत कम इमिशन किया, इसलिए हमें पैसा भी, जीएसटी टैक्स जो भी होगा, कार्बन टैक्स, वो हम कम पे करें, राइट? सब्सिडाइज एंड इंसेंटिव, ये तो बहुत बेनिफिट है। फाइनेंशियल सपोर्ट, ग्रांट, टैक्स क्रेडिट, डिजाइन टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, है ना। ये एक पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी है। डेवलपिंग कंट्रीज में इसे काफी ज्यादा डेवलप किया गया, हमारे कंट्रीज में बहुत कम है कि हमें कोई एनवायरमेंट को पॉल्यूशन कंट्रोल की टेक्नोलॉजी किसी इंडस्ट्री में और उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स क्रेडिट के लिए ग्रांट दे दी, तो ये तो बहुत ही मुश्किल है। हो भी सकता है, अभी तक तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई केस नहीं आया है, मैंने तो कहीं न्यूज़पेपर में भी नहीं पढ़ा है, राइट? हाँ, उसको आते हैं, रिकॉग्नाइज किया जाता है, स्टेज पे आते हैं, मिनिस्ट्री से कुछ फाइनेंशियली उनको कुछ मनी मिल जाता है, एक पुरस्कार दिया जाता है, दैट्स इट। बस इतना ही इंटेंसिव मैंने देखा है, नॉट मोर देन दैट ऑफ इट। Deposit refund system, surcharge on a product that are refunded when the item is returned or recycled, है ना। अगर आप कोई आइटम आपका जो भी है वो रिसाइकल कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट हो सकता है, राइट? मार्केट फ्रिक्शन रिडक्शन, मेजर दैट इंक्रीज द एफिशिएंसी सच एज क्रिएटिंग मार्केट फॉर एनवायरमेंटल इनपुट, वाटर राइट्स ट्रेडिंग और यूजिंग लायबिलिटी रूल्स। ओके, नाउ द एडवांटेजेस एंड गोल्स। अरे बाप रे, क्या क्या एडवांटेज होगी? कॉस्ट इफेक्टिव, एमबीआई मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट इफेक्टिवनेस निकालता है ना। अलाउ द इमिशन रिडक्शन टू ऑकर वेयर दे आर चीपेस्ट, ऑफन रिजल्टिंग इन लोअर कंप्लायंस कॉस्ट कंपेयर टू द यूनिफॉर्म रेगुलेशन, है ना। वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कम से कम रिडक्शन देता है और कम से कम पैसे में, राइट? इंसेंटिव फॉर द इनोवेशन, बाय पुटिंग अ प्राइस ऑन पोल्यूशन, firms are motivated to innovate and develop a cleaner, more efficient production processes. हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में इंसेंटिव नहीं मिलते। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो और काफी ज्यादा क्लीनर टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको फुल्ली फंड करती है उस रिसर्च के लिए, है ना। तो ये एक चीज इंडिया में बहुत अच्छी है कि रिसर्च के लिए तो आपको, अगर क्लीनर टेक्नोलॉजी है, स्पेसिफिकली क्लीनर इन टर्म्स ऑफ फॉर क्लीन एयर, क्लीन वाटर और क्लीन एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, जो भी आप कर रहे हो, पर अगर क्लीन दे रहे हो तो वहां पे आपको गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है, राइट? External internalizing externalities, they address the market failure by ensuring cost of pollution included in a production decision, कि मैंने कल भी समझाया था। Example in practice like carbon market offset used to manage the direct GHG emission, greenhouse gas emission। कई कंपनियां ऐसी होती है वो कार्बन ही प्रोड्यूस कर रही है ना, और कई कंपनियां ऐसी थी जो ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रही हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। वो जितना ज्यादा अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेंगे उतना ज्यादा उस पे टैक्सेस लगेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स used for managing direct emission from the electricity consumption, okay। And then sulfur dioxide trading use under US Clean Air Act amendment। अपने यहाँ पे नहीं है, फॉरेन में ये काफी ज्यादा है, जो ये प्रैक्टिसेस हो रही है ना, ये सारी फॉरेन में ज्यादा है। Then economic incentives such as tax acceptance for the pollution control in India। इंडिया में क्या हो रहा है वो देखते हैं, है ना, कि कहाँ पे आपको इंसेंटिव मिल रहे हैं या टैक्स
क्या एक्सेम्पशन हो रहा है आपका, है ना. इंडिया प्रोवाइड सेवरल इकोनॉमिक इंटेंसिव एंड टैक्स एक्सेम्पशन to encourage industry to adopt the pollution control technology and environmental friendly practices. These measures are designed to reduce the cost of compliance and promote sustainability as a part of India's commitment net zero carbon emission by 2017. हाँ जी, समिट में मोदी जी ने ये कहा था कि हम नेट जीरो कार्बन हो जाएंगे, है ना. हमारे कंट्री में कार्बन जीरो हो जाएगा, मतलब जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही हम लोग डाइल्यूट भी कर देंगे, राइट, बाय 2070, है ना. तो इसके लिए क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या इंटेंसिव दे रहे हैं, है ना. एज ऑफ 2026 ये करंट डेटा है. 100% depreciation on equipment. Industry can claim 100% depreciation up from 40% on a capital cost of the plant machinery related to the environmental protection and pollution control. This applies to air, water, solid waste control equipments. ओके, जहां जहां एयर का इमिशन आप 100% जीरो दिखा रहे हो, क्लीन एयर आपकी आ रही है इंडस्ट्री से, वाटर आ रहा है, सॉलिड वेस्ट, जो भी आप इसके लिए इक्विपमेंट यूज कर रहे हो वहां पे आपको 100% डिप्रिशिएशन मिलेगा ही मिलेगा. ओके. कस्टम ड्यूटी एक्सेप्शन, सॉरी सॉरी, just give me a 1 minute. There is a important call. I'll be get to you. Okay. Hello. Yes, sorry to sorry. Now coming towards the next, that is income tax inspection, exemption, for boards, state pollution control boards, just like Tamil Nadu, West Bengal, Karnataka, have given a granted income tax exception on specific incomes like consent fees and analysis fees. तो इन पे काफी ज्यादा आपको टैक्स नहीं देखने के लिए मिलेगा अगर आप एनवायरमेंटल कुछ उसमें इकोनॉमिक दिखा रहे हैं. तो इंटेंसिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोलर प्लांट मशीनरी क्वालिफाइड अप टू 60% ऑफ डिप्रिशिएशन, है ना. 60% सब्सिडी मिलता है इन फर्स्ट ईयर, और क्या चाहिए. एडिशनल सेक्शन 1880 IA ऑफर 100% इनकम टैक्स एक्सेप्टेड फॉर प्रॉफिट फ्रॉम न्यू सोलर पावर प्लांट्स फॉर 10 years. वहां पे 100% इनकम टैक्स आपका जीरो हो रहा है. लोअर टैक्स ऑन बायोगैस CNG, है ना. इसलिए काफी ज्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां पे CNG का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वहां पे टैक्स बहुत कम है ना. फुल एक्सरसाइज ड्यूटी एक्सेप्शन एग्जिस्ट ऑन बायोगैस कंपोनेंट ऑफ अ बायो ब्लेंडेड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना. CNG की गाड़ियां ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट.
Other financial intensive subsidies on pollution control equipment, specific union territories such as Pondicherry provide 25% subsidy up to maximum 5 lakh for installing pollution control equipments. अगर आप लगा रहे हैं तो पौंडीचेरी में ये बहुत अच्छा है. Seize rebates, industry that comply with the environmental norms and keep water consumption within a prescribed limit receive 25% rebate on water case payable. कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो केस रिबेट ले रहे हैं, जैसे आसाम हो गया ये, और वो त्रिपुरा वगैरह जो स्टेट है ना, वो काफी कम वाटर कंजम्पशन हो रहा है, क्योंकि वहां पे ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी कम यूज करते हैं लोग, राइट. तो समहाउ वहां पे केस रिबेट लगा हुआ है अभी के लिए, फिलहाल के लिए. Carbon capture incentive on 2026 budget allocate 20 crore over 5 years to support a carbon capture utilization storage, जो CCUS प्रोजेक्ट कहते हैं, टारगेटिंग हाई इमिशन सेक्टर, जहाँ पे सबसे ज्यादा इमिशन हो रहा है. अगर वो CCUS सेक्टर है, जैसे ऑयल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, वहां पे कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन स्टोरेज हो रहा है, तो वहां पे उनके लिए इंसेंटिव बनता है ना, वो गवर्नमेंट को क्लेम कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो है, सेवरल स्टेट सच एज दिल्ली ऑफर डायरेक्ट सब्सिडी सच एज, अगर रुपीज में देखे 1.5 लाख फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेस. दिल्ली में ये है, अभी भी है, चल रहा है ना. फोकस एरिया फॉर 2026 के बजट में देखो, ग्रीन बजटिंग इंस्टॉल किया है. तो दिस बजट कंटिन्यूज टू प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी एंड वेस्ट टू वेल्थ इंटेंसिव. देन मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव टैक्स रिलीफ्स ऑन इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयरन बैक्टीरी हैज एक्सटेंडेड अप टू 2035 तक. उसको टैक्स रिलीफ बना दिया गया है जो लिथियम बैटरीज बनाते हैं. ग्रीन फाइनेंस देखो, फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडिया कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट इमिशन रिडक्शन, है ना. तो यहाँ पे ग्रीन फाइनेंसिंग भी होती है, उसके मदद से आपको फाइनेंस मिल सकता है अगर आप इमिशन रिडक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 6. हियर आई एम अनाउंसिंग दैट योर सिलेबस हैज बीन फिनिश. सभी यूनिट हमने फिनिश कर दिए हैं. लास्ट थोड़ा सा इकोनॉमिक है, तो थोड़ा सा चीजें काफी ज्यादा बोर हो गई वहां पर, बट जब LCA और EIA हमने किया तो वो काफी ज्यादा अच्छा था. ISO 14001 भी बहुत अच्छा था, और मैं अनाउंस मतलब फाइनल ड्राफ्ट हो चुका है ISO 1400 2026. तो आप उसे कर सकते हो, ले सकते हो. कोई अगर 2026 का कोर्स दे रहा है तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप कोर्स ले सकते हो, है ना. थ्रू आउट सिलेबस आपको कोई डिफिकल्टी है? थ्रू आउट सिलेबस आपको कोई डिफिकल्टी है? क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक कोई क्लास नहीं होगी. अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, सपोज, ओके ओके ओके, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है सपोज, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ग्रुप में सबके साथ शेयर भी हो चुका है, राइट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल जनरेट अ लिंक, ओके, फीडबैक लिंक. मैंने पहले भी बताया था, अभी भी एक बार फिर से बता रही हूँ. एक फीडबैक लिंक मैं जनरेट करूंगी. प्लीज गिव मी अ फीडबैक ओवर दैट लिंक सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर एज वेल एज. और तब तक अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज बताइएगा. आई विल शेयर माय ऑल द नोट्स टू यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, एज वेल एज आई एम स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट MCQs, है ना. मैंने कुछ बनाए हैं, कल 4-5 बस बनाए थे, उससे ज्यादा नहीं. बट आई विल मेक श्योर कि वो आपको इस वीकेंड तक हैंड ओवर हो जाए, है ना. इस वीकेंड एक्चुअली ये जो वीकेंड है ना, ये थोड़ा मेरे लिए क्रुशियल है, इसीलिए तो देखते हैं. पर आपको इसी वीकेंड तक देना होगा, बिकॉज फ्रॉम 18 ऑनवर्ड्स यू विल बी हैविंग योर एग्जामिनेशन. तो मैं कोशिश करूंगी कि 18 से पहले ही आपको दे दूं, ठीक है. और तब तक कोई Madam, डिफिकल्ट, we request by Wednesday you can share, so we दिस वेडनेसडे, yeah, because 18 and 19 we have the exam, no? 18-19, yeah, I got हाँ. it, but this Wednesday तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है. but I'll still try to figure it out, है ना. जितने बन सकते हैं Because उतने मैं जरूर दूंगी. because वो review भी करने पड़ेंगे ना, मतलब वो go through भी करने yeah, पड़ेंगे ना, definitely, that's why. definitely. हाँ. I'm trying to extract some of the MCQs
I'll try my best and I'll make sure कि आपको वो by Wednesday तक मैं दे दूँ, है ना? क्योंकि Yeah. शायद उसके बाद मैं भी बहुत बिजी हो जाऊंगी एंड फिर उसके बाद तो मैं कुछ मतलब सोच ही नहीं सकती, है ना? तो by Wednesday तक मैं देने की कोशिश करूंगी. Okay? Anything Yeah. else? Thank you. This is from my side. Anything else from your side? Okay, मैम so ये PPTs अगर if you can just हाँ हाँ share through. बिल्कुल बिल्कुल. I'll share all the unit PPTs to you on your WhatsApp group. Soon I'll share by tomorrow morning or tomorrow evening. I'll share all of the PPTs. Okay. Anything else? Ma'am, thank you. Okay, thank you, thank you. Give me the feedback, please, kindly, and tell other people also to please fill the Google form and please kindly give me the feedback. Okay. Sure, ma'am. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.